Hello class, today we will start with our next chapter, probability distribution. So first is the random variable. Random variable means what? While we are taking here probability means what? The total possible outcome. So while we are doing any experiment, or if I tossed any coin, then what happened? There are two possible outcome, that either I get here head or tail. While I write it as this, then it is called as the sample space. Okay, and whatever here variable I use here h and t and x y z, this is called as the random variable. The value of the variable depend on the outcome of the random variable. Okay, so you can here take so many examples for that. While I throw any here two dice, अगर मैं एक डायस थ्रो करती हूँ, ओके, सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आई गेट हियर? while I throw a dice, then there is if I throw a dice, then there is total 6 possible outcome. Then sample space for dice is either I get here 1 2 3 4 5 and 6. While I toss a coin, then there are two outcome, head and tail. If you toss two coins, then what? Head, then head, tail, head, or tail. Okay, same if I here throw two dice, then possible outcomes are, number of possible outcome are 36. Okay, so number of possible outcome are what? Nothing but the here 2 raised to n. number of possible outcome are what? 2 raised to n. मीन्स आपकी कितने सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है. सो 2 raised to 2 मीन्स यू गेट हियर 2. How many times I toss this? 1 time. So 2 raised to 1, 1. How many times I toss the coin? 2. So I get here total number 4 outcome. How many times I throw this dice? 1 time. So you get here कितने हैं आपके? टोटल 6 है. सो 6 आउटकम्स मिलेंगे. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट? Now, random variable is a real valued function defined on the sample space of the random experiment. In other words, the domain of the random variable is a sample space of the random experiment. Okay, so random variable is a real valued function defined on the sample space. Definition आपको याद रखनी है. डिफाइंड ऑन द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें क्या दिया है कि सीड जर्मिनेट एंड लेटर एन इज़ द सीड डज नॉट जर्मिनेट. यहाँ पे 2 ये दिए हैं, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स उन्होंने दिए हुए हैं. ओके, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल देखते हैं हम. देर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. एक तो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करके रहता है, एंड सेकंड इज कंटिन्यूस. डिस्क्रीट मतलब क्या है कि वैल्यू जो है ना, these आर फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट. ओके, और जब आपका ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहता है,
वो वैल्यूज़ कैसी रहती हैं कि लाइज इन बिटवीन सपोज 1 to 0 या फिर 1 to 2, लाइज इन बिटवीन द इंटरवल। ओके, पॉइंट्स में हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट्स में। तो उसका आपका देखो रैंडम वेरिएबल के अगर मैं एग्जांपल्स ले, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सो नंबर ऑफ पेशेंट या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द डीलर, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये ऐसे नंबर है जो पॉइंट में नहीं आ सकते, फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या रहेगा, हाइट, देन वेट, टेम्परेचर, स्पीड, all these number which may occur in the point form. Okay, so these are the continuous random variable. Now what is the probability distribution? Probability distribution of discrete random variable. अगर if s is equals to, if I throw one dice, okay, throw one dice, देखो जब भी हम डाइस का एग्जांपल आपको आगे भी आएगा, याद रखो कि जब मैं एक डाइस थ्रो करती हूँ, डाइस में कितने वैल्यूज रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब मैं इसे थ्रो करूँगी ना, 2 टाइम्स थ्रो किया तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आई गेट, यहाँ पे देखो एक तो 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4, कहाँ तक 1 6 तक, सेम, देन 2 1 2 2, कहाँ तक जाना है 2 6, ऐसे हमें कहाँ तक करना है 6 1 6 2 अप टू 6 6। इफ़ यू काउंट ऑल दिस ऑब्जर्वेशन, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ दिस सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू व्हाट, 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर व्हाट, 36। यहाँ पे देखो कितने टाइम, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 6, सो 6 रेस टू कितने टाइम थ्रो किया है 1, सो हाउ मेनी टोटल आउटकम 1। यहाँ पे देखो कितने थे टोटल 6, कितने टाइम थ्रो किया 2 टाइम्स, तो कितने आ जाएंगे टोटल 36 आउटकम। ऐसे उसे कैलकुलेट करना रहता है। तो डिस्क्रीट का सपोज मैंने क्या किया कि थ्रो किया, मुझे टोटल 36 आउटकम मिल गए, तो टू नंबर कितना आना चाहिए, उन्होंने सम के लिए लिया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स कब रहेंगे 2, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 2 के लिए कब कब आएगा। देखो कौन से नंबर का खाली 1 + 1 ही 2 आ जाएगा, तो कितने नंबर है, ऐसा एक ही नंबर है 1 1 का जहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। देन सम ऑफ द 2 नंबर्स आर 3, कब 3 आ जाएगा, एक तो आपका 1 1 है तब, और या फिर आपका 2 2 है तब। ऐसे कितने आ गए मेरे 2 आउटकम। अगर यहाँ पे मैं 3 1 लिखूँ, 4 आने चाहिए सम, तो कितने आउटकम आई गेट हियर, आई गेट हियर 3 आउटकम। इन दिस वे यू कैन सॉल्व, फाइंड आउट ऑल द आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी टोटल, यहाँ पे देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 36 है, मतलब सैम्पल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट है 36। तो यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर सम आपकी 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है। देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 है, डिवाइडेड बाय 36। 4 आने की, देखो इन्होंने हमें चार्ट में ही करके दिया है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 3, 5 आने की कितनी है 4, 6 आने की ये। तो दिस इज द चार्ट फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस इज द चार्ट फॉर प्रोबेबिलिटी distribution, you can find out it. और नेक्स्ट यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन हैव फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू बट दे आर काउंटेबल। इनफाइनाइट भी हो सकते, आई नंबर तक भी हो सकते हैं, पर वो काउंटेबल रहेंगे, अनकाउंटेबल कभी भी नहीं रहेंगे। देखो ये आपका किसके लिए हो गया, डिस्क्रीट के लिए, उसी में है probability mass function. Okay, so what is mean by the probability mass function? Probability mass function क्या रहता है, sometimes the probability pi of x takes the value xi is function of xi for every possible values of x. Such a function is called as the probability mass function of the discrete random variable.
p of xi is equal to 1 minus I raised to 1 minus here raised to I minus 1 into t. This is the formula for this. हम इसका आगे जाके एग्जांपल्स भी देखेंगे. अभी ये क्या है ना, सभी थ्योरी पार्ट है, खाली डेफिनेशन समझ लो कि इफ़ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कितने एक्स आई अप टू एक्स एन तक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उस एक्स आई की, इफ़ देर इज़ अ फंक्शन एफ सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एट दिस पॉइंट कि एक्स आई पे जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू, देन एफ क्या रहेगा, एफ इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. उसे पी एम एफ करके भी डिनोट किया जाता है. यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी दी गई है कि एक कॉइन को कितने 4 टाइम मैंने टॉस किया है. सो 4 टाइम टॉस किया तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2 3 4. ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है. ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल्स टू आपका क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई. जो सभी आपके मास फंक्शन का आपने एडिशन किया ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट. ये आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्या करना है, समेशन करना है हमें. दिस इज़ नथिंग बट योर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ तक किया 0 to 1 तक, 0 पे क्या रहा 1/6. देन मैंने यहाँ पे एट पॉइंट 1 पे क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/4, यू विल गेट 5/16. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/4 प्लस 3/8, यू विल गेट 11/16. देन 1/16 1/4 3/8 1/4, तो you will get here 15/16. and in last 1/16 1/4 1 by here 3/8 3/16 and then 1/16, you will get here क्या 1. ओके, तो सबकी एडिशन करनी है हमें. ओके, दिस इज़ योर क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं, यहाँ तक 1 तक है ना, तो 1 तक के नंबर के, 2 तक है तो 2 तक के नंबर की एडिशन करो, 3 तक पूछा है 3 तक के नंबर की एडिशन करो, प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन करो. ओके, okay, in next lecture we will see some examples based on this probability. Okay, thank